My precious children of God, I welcome all of you to this program, and we are going to meditate Psalm 34 verse 17 today. प्रभु की प्यारी संतानों, इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हम भजन संहिता अध्याय 34 वचन 17 पर मनन करेंगे। It says, "The righteous cry out, and the Lord hears them. He delivers them out of all their troubles." ये कहता है, धर्मी दोहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। The Lord Jesus himself said in John 16:33, "In this world you will have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world." स्वयं यीशु मसीह ने यूहन्ना 16:33 में कहा है कि इस संसार में तुम्हें क्लेश तो होता है, परंतु धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। Yes, my beloved ones, in this world, every day, every single minute, we face many troubles and trials. हाँ मेरे प्रिय लोगों, इस संसार में हर एक पल, हर एक दिन हम परीक्षाओं का सामना करते हैं। But in the midst of that, what we should do? लेकिन इसके बीच में हमें क्या करना चाहिए? We have to look unto Him. हमें उसकी ओर देखना चाहिए। We have to cry unto Him. हमें उससे पुकारना चाहिए। That's what we read in Psalm 121, 1 and 2. और यही तो हम भजन संहिता 121 वचन 1 और 2 में पढ़ते हैं। Only from Him help will come. केवल उसी की ओर से सहायता आएगी। Romans 8:35 and 37, if we read, it says, "Who will separate us from the love of Christ? Shall tribulation or any other terrible thing separate us from Him?" और रोमियो अध्याय 8 वचन 35 और 37 ये कहता है कि कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करवाएगा? क्या संकट या कोई और दूसरी चीज हमें दूर कर पाएगी? Especially 37 verse says, "In all these things we are more than conquerors through Him who loved us." और खास करके वचन 37 ये कहता है कि इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। What a great love God's love is. परमेश्वर का प्रेम सच में कितना महान है। He is ready to help you at all times. वो तो बिल्कुल हर समय आपकी मदद करने को तैयार है। So what we have to do, तो हमें क्या करना चाहिए? according to Psalm 34 verse 10, we have to seek His ways. भजन संहिता 34:10 के अनुसार हमें उसके चेहरे को निहारना चाहिए। Those who seek the Lord shall not lack any good thing. और जो परमेश्वर को खोजते हैं वो उन्हें कभी कोई भली वस्तु की कमी नहीं होगी। And Matthew 6:33 says, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these blessings shall be added unto you." मत्ती 6:33 कहता है कि सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएगी। If you read about David in the book of 1 Samuel chapter 30 verses 6 to 19, he had to go through a terrible problem. दाऊद के बारे में अगर आप पहला शमूएल अध्याय 30 वचन 6 से 19 में पढ़े तो आप पाएंगे दाऊद बड़ी समस्या में से होकर जा रहा था। But what did he do? लेकिन उसने क्या किया? It's a beautiful thing we have to notice. और ये तो जानना बहुत ही सुंदर बात है, हमें ध्यान देना होगा। David strengthened himself in the Lord his God. और तब दाऊद ने अपने प्रभु परमेश्वर को स्मरण करके हियाव बांधा। The strength came from the Lord. जो बल है वो तो परमेश्वर की ओर से आया। And because of that, if you read verse 19, और उसके कारण अगर हम वचन 19 पढ़ते हैं, it says, "David recovered all." और ये कहता है कि दाऊद ने सब कुछ वापस पाया। David recovered all. He did not lose even a single thing. और दाऊद ने सब कुछ वापस पाया, उसने एक भी चीज नहीं खोई। Who gives us victory like that? इस तरह से कौन हमें विजय देता है? 1 Corinthians chapter 15 verse 57 says, "Thanks be to God who gives us victory through our Lord Jesus Christ." पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 37 कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो जो यीशु के द्वारा हमें विजय देता है। Even today you may say, "I'm going through lot of difficulties." और आज शायद आप कहें कि मैं बहुत सी मुश्किलों में से होकर जा रहा हूँ। Don't worry, come, we'll give all the glory to Jesus who is going to deliver you from all those worries. और आप चिंता मत कीजिए, यीशु के पास आइए और यीशु आपको उन सारी चिंताओं से छुटकारा देंगे।
And God will surely do that. और निश्चय ही परमेश्वर इसे Shall करेंगे। we pray? आइए प्रार्थना करते हैं। Father, look to your children. हे पिता, अपनी संतानों की ओर देखिए Those who are going through troubles and trials, Lord, you are the one who has to deliver them, Lord. और प्रभु जो लोग परीक्षा में से होकर जा रहे हैं, प्रभु आप ही इन्हें छुटकारा दीजिए। Lay the mighty hand upon all those who are going through troubles और जो परेशानी से जा रहे हैं उन सभी के ऊपर अपना सामर्थी हाथ रखिए and deliver them, Lord, right now by the power of God. और परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा अभी आप इन्हें छुटकारा दीजिए। Do a miracle in each person's life. अब हर एक व्यक्ति के जीवन में आप अपना चमत्कार कीजिए। In Jesus' mighty name we pray. यीशु के सामर्थी नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। Amen. आमेन।